Today we will start the some relations of the triangles, some relations of the triangles, some relation of the triangle of the angle. Sorry. सम रिलेशन ऑफ द एंगल्स में कुछ रिलेशंस भी होते हैं, आज उन्हें हम डिस्कशन करेंगे. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस हाउ व्हाट इज एंगल्स, व्हाट इज लाइंस, व्हाट इज टाइप ऑफ एंगल्स. We have to already discussed in previous lecture. Now today we will start some relations of the angles. Adjacent angle. Adjacent angle. Adjacent angle. Two angles are called. Two angles are called. Two angles are called adjacent angle. Adjacent angles if first adjacent angle if first they have the same vertex. They have the same vertex. Second, they have a common arm. They have a common arm. And third, their non-common arm. Their non-common arm are on either side of the common arm. Common arm. What means? What is say this adjacent angle? Suppose this is the angles. Suppose this is the angles, and one rays is also proposing from here. This is O, B and C, and this is A. This is A. This angle is said to be adjacent angle. Adjacent angle. How? Three condition, mainly three condition will be applied here. They have the same vertex. They have the same vertex. एक ही वर्टेक्स से दो एंगल्स हम ड्रा किए हुए हैं, तो दे हैव द सेम वर्टेक्स. फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाई. दे हैव कॉमन आर्म. दिस OC is the common OB and OA. This range OC is common OB and OA. This condition is verified. And their non-common arms are on other side of the common arms. Non-common, this and this is not common. The other side of this arm, इसके other side, इसके इस साइड है, इसके इस साइड है. ये तीन कंडीशंस इस पे होल्ड करनी चाहिए, जो कि अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड कर रहे हैं
तो कहेंगे कि जो दिया गया एंगल्स है वो एडजेसेंट एंगल्स होगी। सेम वर्टेक्स, सेम common arm, have the common arm, their non-common arms are on either side of the common arms. These three types of conditions hold. Then we say that this is the adjacent angle. This is the adjacent angle. Here O is the vertex. This is vertex. This is arms. We have already discussed in another lecture. This is angle. This is angle. We have already discussed in another lecture. What is this? Now linear pair. Linear pairs of angles. Linear pair of angles. Angles का linear pair. Very important definition between adjacent and this is linear pair. This is linear pair. Two adjacent angles. Two adjacent angles. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles. A linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. Are two opposite rays. Here we have to understand figurely. This is vertex. This is the B. Same condition is here. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. Non-common arms. This is the common arm. OC is the common arms. This is non-common. OA and OB is non-common arms. This is opposite rays. ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. इस तरह के कंडीशंस अगर बनाता है तो कहेंगे कि लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर. टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स if their non-common arms are two opposite rays. Now we discuss about some results of this linear pair, means theorem. What is theorem? What is postulate? What is axiom? We have already discussed in previous lecture. Those student who is new in this topic, at first those students see the previous videos related this chapter, then you start these videos, because everything is very clearly we have discussed. What is theorem, what is axiom, what is postulate, we have already discussed in previous lecture. You have to see previous videos related to this topic. Now if a ray stand on a line
on a line, then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree. If ray stand on a line, then the sum of the adjacent angle so formed is 180 degree. मीन्स अगर कोई रेज किसी लाइन पर स्टैंड है तो वो उन दोनों एंगल जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उन दोनों का सम 180 होगा, ये कहना चाह रहा है ये थ्योरम। देखते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ दिस इज द फिगर इज वेरी क्लियरली एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ज्योमेट्री। This is C. Now we have a construction. E. Array CD stand on a line AB. ये जो रेज CD है वो लाइन AB पे स्टैंड है, इस तरह से खड़ी है, स्टैंड। सच दैट एंगल ACD एंड एंगल BCD, दो एंगल बना रहा है इस तरह से, ACD एंगल BCD या DCB एक ही एंगल है, आर फॉर्म्ड। ए रे CD स्टैंड ऑन ए लाइन AB सच दैट, इस तरह से कि एंगल ACD एंड एंगल BCD आर फॉर्म्ड। ये लाइन CD, रेज CD लाइन AB पर इस तरह स्टैंड है कि दो एंगल फॉर्म कर रहा है, ACD एंड DCB या BCD, बहुत एक ही बात है। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180। वी हैव टू प्रूव, ये प्रूफ करना है कि ACD और DCB का सम 180 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन ड्रा CE परपेंडिकुलर टू AB। ड्रा CE हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, CE इस लाइन AB के परपेंडिकुलर ड्रा किया। CE लाइन AB के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर हमने कंस्ट्रक्शन किया। प्रूफ एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD। नाउ सी क्लियरली, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, एंगल ACD की, इस वाले एंगल की।
ACD, दिस इज द सम ऑफ दिस टू एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये पूरा मिल जाएगा। यानी ACE प्लस ECD, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा। ये लिख दिया मैंने इक्वेशन 1। एंड एंगल BCD इक्वल टू, एंगल BCD इक्वल टू, अब इसको देखते हैं। BCD क्या करेंगे, एंगल BCE, एंगल BCE माइनस एंगल ECD, एंगल ECD, इक्वेशन सेकंड। यानी हमको ये चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए BCD। इस BCD को पाने के लिए इस पूरे में से इसको निकाल देंगे तो इतना बच जाएगा। वही क्या है, मैंने BCE में से ECD इतना निकाल दिया तो ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा। एडिंग वन and 2, adding 1 and 2, we get, adding 1 and 2 we get, ऐड कर दिया, हम भी ऐड कर दिए सीधे एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू, नाउ हियर इफ वी ऐड दिस इज कैंसिल, एंगल ACE प्लस एंगल ECD प्लस एंगल BCE माइनस एंगल ECD। नाउ वी हैव, दिस इज द सॉल्व, एंगल ACE प्लस एंगल ECD प्लस एंगल BCE माइनस एंगल ECD विल बी कैंसिल ECD, ACE प्लस एंगल BCE, here ACE will be 90, ECB will be 90, means 90 plus 90. Here angle ACD plus angle BCD equal to 180. This is the proof. This is the proof. See very clearly and try to solve yourself in your copy. This is the theorem and keep in your mind. This theorem always keep in your mind because this is used directly in numerical portion. When I solve the numerical, we have put the value from this theorem directly. इसलिए इस थ्योरम, ये थ्योरम इतना इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि जब हम लोग थ्योरम न्यूमेरिकल्स प्रूफ करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू वहाँ रख देंगे, फिर वहाँ आप समझ जाइएगा कि ये कहाँ से आया। जैसे कि ये थ्योरम कह रहा है कि इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। जो भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, जो भी एडजेसेंट एंगल होंगे सेम वर्टेक्स से, तो जो भी सम 2
If ray stand on a line, then the sum of the adjacent angles so form is 180 फॉर्म करता है. वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर न्यूमेरिकल वैल्यूज. नाउ नेक्स्ट note very important note we have to use directly. The sum of the angles the sum of the angles of a linear pair of a linear pair is 180. This is the important note. Sum of the angles of linear pair is 180. जो भी लीनियर पेयर्स आएंगे उनका सम 180 होता है. 180 होता है. सपोज दिस इज द एग्जाम्पल. दिस इज द एडजेसेंट. दिस इज द एडजेसेंट. दिस इज द एडजेसेंट. This angle, this angle, this angle. So suppose this is y, this is x, this is z. So we have to show that x plus y plus z equal to 180. Directly we have to say this is the linear pair. तो यही कह रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज 180. जो भी लीनियर पेयर्स में आएंगे उसको हम इनका सम कहेंगे कि 180 होता है डायरेक्टली. This is the important note. Now theorem 2. There is theorem 2. If the sum of two adjacent angles is 180, then the non-common arm of the angle of the angles are in a straight line. This is the another theorem. कन्वर्स मीन्स जो थियरम हमने प्रूफ किया है उसका ये थियरम उसी का उल्टा है. कन्वर्स. उस थियरम में हम लोगों ने देखा था कि एक लाइन है, ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर एक रेज स्टैंड होती है तो जो सम ऑफ एंगल्स होते थे वो 180 होता था. ये प्रीवियस थियरम में हमने देखा. बट दिस थियरम से दैट ऑलरेडी द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180. दिस थियरम में ये उल्टा लेके चल रहा है. उसे वो इधर से कह रहा है कि सम ऑफ एंगल्स हैं जो वो 180 है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो दिया गया लाइन है, जो नॉन कॉमन आर्म्स का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है. ये प्रूफ करना है. ठीक उस थियरम का अपोजिट प्रूफ करना है. ठीक जो पहला थियरम था उस थियरम का ये अपोजिट है. सी
This is the another construction is here. This is D. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या दिया है गिवन, OA and OB are in the same straight line. दिया क्या है, two adjacent angles, two adjacent angles, angle AOC and angle BOC. AOC BOC ये दो एंगल दिया हुआ है, AOC BOC दो एंगल दिया है, विथ कॉमन आर्म OC, विथ कॉमन आर्म OC, OC विथ कॉमन आर्म OC, OA और OB के लिए ये कॉमन है OC, तो विथ कॉमन आर्म OC, such that angle AOC प्लस एंगल BOC इज 180। प्रीवियस थियरम में हम यही प्रूफ किए। प्रीवियस थियरम में क्या था कि दो एंगल्स थे अगर कॉमन आर्म्स के साथ, तो हम कह रहे थे कि इन दोनों का सम 180 होता है। ये हम प्रीवियस थियरम में प्रूफ कर चुके हैं, ये बात यहाँ लिख दिए। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, OA and OB are in the same straight line, OA and OB are in the same straight line, same straight line, OA and OB are in the same straight line, are in the same straight line। हमने जो कंस्ट्रक्शन लिखा दिया था वो भी लिख दें, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, लेट AOB, let AOB be not a straight line, be not a straight line, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। We have to support here AOB be not a straight line। प्रूफ क्या करना है, AOB स्ट्रेट लाइन है। मैं यहाँ क्या सपोज कर रहा हूँ, AOB नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, उल्टा मान रहे हैं हम। यहाँ दिया है, हमें प्रूफ करना है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये प्रूफ करना है, लेकिन हम उल्टा मान रहे हैं। AOB नॉट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है। then AO produce AO2D, AO2D so that AOD is a straight line, is a straight line। See here very clearly, see here AOB
ए ओ बी नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये हम मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, हालांकि प्रूफ तो यही करना है ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, बट हियर वी हैव ट्राइड टू प्रूफ लेट ए ओ बी नॉट स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जब ए ओ बी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कुछ तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो हमने प्रोड्यूस कर दिया ओ बी को ओ डी पे, तो ए ओ डी, तो अब हम ये लेट कर रहे हैं ए ओ टू डी सो दैट ए ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ए ओ डी को स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन ये है, लेकिन हमने लेट कर लिया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ये नहीं है, स्ट्रेट लाइन ये है, ये सीधा है, ए ओ डी, ऐसा हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो सामने से ही दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ों को उल्टा मान लेते हैं और उसको सीधा प्रूफ कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं ए ओ बी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कौन सा स्ट्रेट लाइन है? ए ओ डी स्ट्रेट लाइन है, यही बात यहाँ लिखी है। ए ओ बी नॉट ए स्ट्रेट लाइन, देन प्रोड्यूस ए ओ टू डी सो दैट ए ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। सी वेरी क्लियरली। नाउ प्रूफ by our assumption, क्या हमने जंप किया है, क्या माना है, क्या लेट किया है? आवर assumption ए ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन and ray OC stand on it, stand on it। इस फिगर में देखिए, हमने इसको माना है स्ट्रेट लाइन है, ए ओ डी स्ट्रेट लाइन है, और ये रेज ओ सी जो है वो ए ओ बी पे स्टैंड ना होकर के ए ओ डी पे स्टैंड है। चलिए, therefore एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180। पीछे हमने थ्योरम प्रूफ किया है कि अगर किसी लाइन पे कोई रेज स्टैंड होती है तो उसका सम 180 होता है। ए ओ सी ओ डी इक्वल टू 180, इक्वल टू 180। ये पीछे जो थ्योरम हमने प्रूफ किया है ठीक उसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दे कहाँ से? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, लीनियर पेयर। बट ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। यहाँ इक्वेशन वन यहाँ पे हम पहले ही निकाल चुके हैं, ए ओ सी इक्वल प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। तो बट दिस इज जो कि गिवन था, जो कि थ्योरम में दिया गया था, लिख दिया गिवन बाई 1। देयरफॉर जब ये दोनों लाइन 180 के बराबर है, ये 180 के बराबर है, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के बराबर है। अगर ये एक दूसरे के बराबर है तो ये भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, यानी ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी ये इक्वल है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी के। क्यों? ईच इक्वल टू 180, ईच इक्वल टू 180, क्योंकि हर एक 180 के इक्वल है। नाउ हियर ए ओ सी विल बी कैंसिल, सो एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। हियर
COD इक्वल है BOC के, यानी या इतना ये दोनों इक्वल हैं, या हम सिर्फ COD कहें या BOC कहें, दोनों एक ही बात है। यहाँ से जो हमने प्रूफ करके लाया दिखा दिया, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो हम उल्टा मान के चले थे कि AOD स्ट्रेट लाइन है, AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो हमारा जो एजम्पशन था वो सही था, तभी तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया। बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये तो सही नहीं है, देखने से ही लग रहा है, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है? सिंस ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, क्योंकि ये पूरा है COB और COD इसी COB का पार्ट है, तो कभी एक पार्ट क्या पूरे होल के इक्वल होगा? नॉट पॉसिबल। हियर सिंस ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, therefore our assumption is wrong, जो हम मान के चले थे वो सही नहीं है। तो सही क्या है? हेंस AOB स्ट्रेट लाइन है, इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। जब हम ये मान लिए थे कि AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जो हम सॉल्व करके ला रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब AOB स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज द कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरम। These two theorem we directly use the numericals, related numericals. All the student make your copy, fair copy, and write theorem line by line in your copy and put in your mind. Theorem is very important. I again and again saying that theorem is very important. बिना theorem के हम solutions नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि बहुत सारे जगहों पे या देखा गया है जनरली कोचिंग सेंटर में कि बस 2.1 2.3 चैप्टर डालते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करके बता देते हैं, ये थ्योरम इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज करो, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं, क्लास 9th में थ्योरम स्टार्ट है और थ्योरम आपको पढ़ना है, एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग थ्योरम को दिमाग में रखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन योर माइंड एंड प्रिपेयर्ड और योर फेयर कॉपी one by one. Now we start the theorem near about in class 9 20 or 30 theorem is there in class 9th. So next theorem we will start in next videos, vertically opposite angle. Now we discuss about vertically opposite angle. We start tomorrow vertically opposite angle. What is vertically opposite angle? Now we solve related this theorem. One theorem is available, one theorem more in this chapter, vertically opposite angles. Now according to these three theorems we solve the numericals of this chapter.
of this chapter. Now all the student read very clearly and ask the question related to these videos. If you are not understand how to come the theorem, how to the points, how to the construct the figure, and anyways, thank you.